Actually, it's about the skin color bias that that we face every day in society. So the seed also came from that only. I also, I've grown up in this society, and it's a thing that is prevalent everywhere and in every family, I guess. So that is from where I got this concept and developed it into a script, and finally we are here releasing it. Actually, I have watched this film in Mami long back, and I was extremely blown away by this film because, of course, the concept is very strong. कि हमारी जो सोसाइटी में हमेशा सफ़ेद रंग या गोरे रंग को कहा जाता है कि सुंदर है, लेकिन सुंदरता की तो कोई परिभाषा नहीं होती है. तो अपना जो इनका कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत खूबसूरत ही है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बनाया है इसे, मैंने जब इन्हें देखा था तो मुझे लगा था कि दिस फिल्म इज़ अहेड ऑफ इट्स टाइम. और अब ये वक्त है जहाँ जो दर्शक हैं, जो ऑडियंसेस हैं, ये ढूंढ रहे हैं कि पावरफुल कॉन्सेप्ट्स और स्टोरीज हों. So I feel this is one of the most powerful story that I have seen lately, and I'm so glad that we are all going to see it together. अक्षय ना जब मेरे पास ये कैरेक्टर लेकर के आए थे ये मूवी, मुझे ना ये इंस्टेंटली आई जस्ट काइंड ऑफ it just attracted me instantly, and the reason being is because it was so real. This is something which I have faced in my life. Like I come from Lucknow, and it's like a small town where people they always pick up ठीक है रंग दबा हुआ है, थोड़ा गोरा हो जाए, शादी में प्रॉब्लम आएगी, ये आएगी, कुछ लगाओ, उपटन लगाओ, like it's like so much. And I was also a sports person. I was a swimmer. तो वो तो और करते करते टैन हो जाता था. तो like my relatives, अरे क्या स्पोर्ट्स करा रहे हो, और काली हो जा रही है. So I had like white teeth on my black face. So all those things are so real, and it just instantly touched me. So I just thought, okay, I think it needs guts, it needs conviction, it needs lot of thought to actually pick a subject like this, and then all the more to present it in an entertaining way, which he has successfully managed to. So probably I think for an audience to go out in theatre and watch out for something very entertaining is what this film has. Along with that, it has a very powerful message. So that sums it up, and it was for me a very energetic experience. While I was doing this character, to just be in this character was very draining also, because that was something, every scene was so relatable, which I have gone in my life. So even in my acting career is also something which I have faced because of my skin complexion, my skin tone. So yeah, I think kudos to Akshay for bringing this up and then presenting it in such a way. मतलब मेरे लिए तो ऑब्वियसली एक शब्द जो कह रहे हैं आप, बस मैं यही कहूँगा कि हम सब ने मेहनत की है, सारी टीम ने मेहनत की है. जिस तरीके से फिल्म को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में रिसीव किया गया था, और जिस तरीके से हमने कुछ फोकस स्क्रीनिंग की यहाँ पे, और वो आम जनता ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, हम बहुत आई थिंक अद्भुत था मेरे लिए वो. बहुत आई फील आज अगर आप कोई मेरे से पूछता है, I don't know, but I feel blessed that I could pull it off all that. I think the kind of energy we had on the sets, because of the people and the crew involved, I think is that team effort that we are here today, and whatever the kind of film that we have made, final result is because of the whole team. Yeah. And I'd like to add to what he said. It's simply because every single person on the set, from the spot boy to the DOP to the director, actors, everybody, the entire crew, believed in this concept. So the energy was all there. Everybody manifested, so it turned out to be like this. Yeah. So yeah, that's it. आशीर्वाद मेरा. मैंने ट्रेलर काफ़ी एक्साइटिंग था. इसमें देखो जो ट्रेलर बहुत अच्छा है, और
डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ वेरी प्रॉमिसिंग फिल्म बिकॉज कंटेम्प्रेरी है सब्जेक्ट. ये हमेशा जब तक मानवता रहेगी तब तक ये सब्जेक्ट रहेगा. सो आई थिंक दैट दिस नीड्स टू कम आउट एंड पीपल सी इट इन गुड लाइट. दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट. So I've seen the trailer and I think I love the characters जो भी दिखाए हैं. Without naming people, I just love the characters. I think सबको देखकर it's not looking like they're actors. They're looking like characters. I love that about the trailer. And of course Akshay, I have worked with Akshay. So I know him as an actor and I know him as a director. मैं जानती हूँ कि as a director उनका vision क्या है, as an actor उनका passion क्या है. So I'm really waiting to see what he's really done of this film and this story and this concept because like I said I worked with him and I know what he's capable of. So I'm really waiting for this. मैं बहुत खुश हूँ इसलिए क्योंकि आजकल एक ऐसा दौर चल रहा है जहाँ पर सारी फिल्में या बहुत सारी फिल्में OTT पर रिलीज़ हो रही हैं. और पिंकी ब्यूटी पार्लर जैसी फिल्म जिसने इतने सारे फेस्टिवल्स में बहुत सारे अवार्ड्स जीते, उसे बिग स्क्रीन पर रिलीज़ होने का एक मौका मिल रहा है, वो बहुत अच्छी बात है. एंड इट्स अ फैंटास्टिक सब्जेक्ट एंड ऐसी फिल्मों को और ऑडियंस आकर देखे, सपोर्ट करें. आप मीडिया वाले इतना अच्छा कवरेज दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है. एंड अक्षय सर जो है, आई हैव वर्कड विद हिम एज एन एक्टर एंड एज अ डायरेक्टर, सो आई लव हिम एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग दिस फिल्म एंड इट्स लुकिंग सो गुड एंड इट्स अ ग्रेट सब्जेक्ट. एक्चुअली सबसे पहले मैं ये कहूँगा, मैं सर को भी बोल चुका हूँ कि सर मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है. अगर सर की आप जर्नी देखेंगे, जिस तरीके से इन्होंने शुरुआत की और आज एक लीजेंड बन गए, तो मेरे लिए तो बहुत इंस्पिरेशन है. और ये इंस्पिरेशन मैं रोज़ लेता हूँ. मतलब कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो ये मतलब एक क्लब वाली जो भूमिका होती है ना, तो ये वैसी है कि सर ने बहुत कुछ दिया है जो हमने फिल्मों से लिया और पर्सनली मैंने बहुत कुछ सीखा है सर से. इनफैक्ट जब फिल्म की ये रिलीज़ वगैरह भी होती है तो मैं सर से पूछता रहता हूँ, सर क्या करूँ, कैसे करूँ, एंड ही इज़ ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी एंड गिव मी ऑल दिस एडवाइजेस. जेन्युइन एडवाइस मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है, जो कम मिलता है. तो सर से मुझे हमेशा यहाँ से एडवाइस मिली है. ऐसे वाले दौर में जब हम लोग स्पेक्टिकल की बात कर रहे हैं, बड़ी फिल्मों की बात कर रहे हैं, एक ग्रैंडर की बात कर रहे हैं, उधर एक सोल वाली फिल्म, एक पर्पस वाली फिल्म को लेके आना, ये भी अपने आप में गट्स है. पर ये अटेम्प्ट हमारे यहाँ से होते रहने चाहिए, ये हमेशा से मेरा मानना है. और ये मैं बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से भी बोल सकता हूँ कि जब मैं कन्वर्ट्स मनु कर रहा था तो मुझे भी नहीं पता था वो एक छोटी साइज़ की फिल्म थी, वो कितनी इम्पोर्टेंट थी, ये उस वक्त मुझे नहीं महसूस हो रहा था. पर जब वो फिल्म चल गई और किसी वजह से चल गई, मुझे ये समझ में आया कि ये ना वक्त अपने आप एक रोटेशन के बाद आता है जो आपको बताता है कि हाँ अब थोड़ा सा वक्त बदलेगा. सो अक्षय की ये फिल्म भगवान करे बहुत चले, बट ये इम्पॉर्टेंट फिल्म इसलिए क्योंकि इस साइज़ की फिल्म का भी ना एक सर्टन एक्सेप्टेंस ऑडियंस की तरफ होना ज़रूरी है. वो तब तक नहीं होगा जब तक हम ऐसी फिल्में नहीं बनाएं. टैक्स फ्री चीज़ को तो मैं, क्योंकि जब ये फिल्म बना रहे होंगे इनके मन में ये कभी नहीं होगा कि ये टैक्स फ्री हो जाए. और टैक्स फ्री सामने वालों को लगना चाहिए टैक्स फ्री हो जाए. हमारी तो नीयत फिल्म बनाने की होती है, ऑडियंस तक पहुंचने की होती है. वो टैक्स फ्री पहुंचे या विदाउट टैक्स फ्री. अच्छा था और बहुत ज़्यादा फ़न किया हम सब ने. बहुत अच्छा खाना खाया बनारस में, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया. और शूटिंग करते वक्त लगा कि हम फैमिली हॉलीडे में थे, थैंक्स टू अक्षय सर. तो ऐसा लग रहा था कि हम छुट्टी मनाने आए और उसी चक्कर में हमारी फिल्म भी शूट हो गई, तो बहुत अच्छा लगा. ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें मैंने हमेशा बिलीव किया है. आई हैव नेवर एंडोर्स्ड अ फेयरनेस क्रीम एंड आई हैव ऑलवेज बिन शॉक्ड कि लोगों की सुंदरता को उनके स्किन कलर से कंपेयर करते हैं. तो मुझे हमेशा ये शॉकिंग लगता है. एंड मुझे जो लोग सुंदर लगते हैं, बाकी लोगों को वो सुंदर नहीं लगते थे. मैंने ये क्या कन्फ्यूजन है, मेरे में कुछ गड़बड़ है कि दुनिया में. बट जैसा सर ने कहा,
नज़र का ऑपरेशन हो सकता है, नज़रिया का नहीं, सो वही बात है। मैं खुद पर्सनली मेकअप तो हमको करना ही पड़ता है, वरना आप लोग आएंगे नहीं देखने हमें तो थोड़ा बहुत मेकअप तो स्क्रीन पे करना पड़ता है। पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो मतलब हम नॉर्मली जो यूज़ करते हैं, बट फेयरनेस क्रीम्स कोई यूज़ नहीं करता है। किससे तो बहुत सारे, सबसे ज़्यादा क्लोज ये है जब मैंने एक सीन था जिसमें मुझे ठंडाई पीनी थी, वो दिन है और आज का दिन है, मैंने ठंडाई कभी नहीं पी। वो पहला दिन था जब मैंने ठंडाई पी थी और मैंने 5 ग्लास 6 ग्लास 7 ग्लास ठंडाई पी थी। तो उसके बाद मैंने आज तक ठंडाई नहीं पिया। आई थिंक अब टाइम हो गया है, आई थिंक वी कैन गो बैक एंड ट्राई ठंडाई वंस मोर। बहुत अच्छा लगा, मतलब जैसे कि देख रहे हैं और बिल्कुल अलग टाइप का ही चैलेंजिंग रोल था। बाकी तो आप प्लूटो से पूछो या प्लाटो, कौन सही है आप बताओ। कॉन्सेप्ट बहुत कमाल का है कि मतलब पहली बार उसने सुनाया, उसने बोला कि पूरी नरेशन देते हैं, उससे पहले तुमको 1 लाइन सुनाए थे। तो जैसे 1 लाइन सुनाए तो मैंने कहा कि डन, नरेशन की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली तुम बहुत अच्छा लिखोगे, बोनी भी है साथ में। तो आप जेन्युइनिटी, एकदम जेन्युइन नेचुरल होने के साथ साथ ना वो जो कॉमेडी हम लोग कोई नहीं कर रहे थे, और वो जिसको कहते हैं ना रस निष्पत्ति, वो हो रहा था। और वो जब सारे लाइटमैन और सारे सिटिंग के लोग हंसने लगे ना, तब हम लोग को लगता है कि यार रियल होते हुए भी हम लोग ह्यूमर दे पा रहे हैं। तो ये अलग था, अच्छा था। 3 शब्द, एंटरटेनिंग है, एंटरटेनिंग है, एंटरटेनिंग है, बट उसके साथ एक ब्यूटीफुल मैसेज भी है। और आप एंगेज रहेंगे थ्रू आउट द फिल्म, आप एंटरटेन रहेंगे, और साथ ही आप घर जाके 100% अपनी फैमिली के साथ ये डिस्कशन ज़रूर करेंगे कि गोरा और काला में फ़र्क करना गलत है। तो यही हम चाहते हैं कि लोग इस बारे में बात करें और ये चीज़ रेलेवेंट ना रहे ये टॉपिक, और लोग पीपल सी बियॉन्ड स्किन कलर। Itself is very challenging, because that's something which is a very pain point. We as an individual, we are immune to these things because it just doesn't matter. But to play these things, there is if you see towards the end of the film, there is a data कि इस काले गोरे के भेद के चक्कर में ना how many deaths actually happen, how many suicides actually happen. This is a very crucial pain point of the film. So I think to relate with that pain point was very challenging, and in every scene with every आपने तो देखी हुई है, there are scenes जहाँ पे देख के लगता नहीं है आप दोनों बहनें हैं, and in reality I have a younger sister who's like a milky white, absolutely total fair. तो ये सब चीज़ें ना हमने फेस की है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता था, but there are people who actually get touched with it, who get hurt with this, and they take extreme steps. तो ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग था कि टू स्टेप इनटू दोज शूज एंड देन लिव दैट कैरेक्टर, दैट वाज समथिंग वेरी वेरी चैलेंजिंग। अरे मैं तो यही बोल रही हूँ, ये इतना सीरियस सब्जेक्ट है, एक्चुअली इट इज़ एन आर्ट टू कम्युनिकेट अ मैसेज इन एन एंटरटेनिंग वे, वो भी इतना सीरियस सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को एंटरटेन करते हुए कह देना। आई थिंक दिस इज़ प्रॉब्ली एन exception, I will say. It's an exception. At least मैंने apart from राजकुमार हिरानी who really does this kind of thing,
कि वो बहुत ही एफर्टलेसली ना एक बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट को लोगों तक कम्युनिकेट कर देते हैं. प्रॉब्ली अक्षय इज द सेकंड फॉर मी हु आई हैव सीन इन कम्युनिकेटिंग समथिंग एज सीरियस एज दिस सो एफर्टलेसली. बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ज़रूरी कॉन्सेप्ट है समाज के लिए. तो ये जहीन व्यक्ति हैं तो इन्होंने अच्छा ही लिखा बनाया होगा. हमारे पुराने मित्र हैं, ये हमारे जूनियर हैं. तो मेरी शुभकामनाएं हैं पूरी पिंकी ब्यूटी पार्लर टीम को. थैंक यू सो मच. बाकी देखने के बाद बात बाकी देखने करेंगे. के बाद